Hello, my dear soul family. Very beautiful evening. और this is coming जो फुल मून आ रहा है अभी, जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो आ रहा है, it is going to be a great day. And at the same time, this बुद्ध पूर्णिमा is also bringing so many happiness, so many things in your aura, in your light. तो आप लोग के साथ मैं आज ये क्विक रीडिंग करने वाली हूँ कि व्हाट आर द ब्लेसिंग्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर वेटिंग फॉर, व्हाट आर द गाइडेंस दैट इज़ द यूनिवर्स इज गाइडिंग टुवर्ड्स अस. तो ये कलेक्टिव के लिए पूरा रीडिंग है. सो टेक व्हाट इज रेजोनेट विथ यू एंड लीव व्हाट इज रेस्ट. जो आपके साथ मैच नहीं करता, जस्ट लीव दैट थिंग. एंड अगर ये रेजोनेट करता है तो क्लेम इट विथ टाइपिंग 1111 इन द कमेंट सेक्शन. एंड डू लेट मी नो कि आपको ये रीडिंग कैसा लगा, सो दैट आई कैन टेक मोर रीडिंग आउट फॉर ऑल ऑफ द कलेक्टिव्स. So please do comment, and you can follow me on my Instagram channel also, that is feel it and heal it 1111. So let's start our reading. To connect with the energies, you can close your eyes and connect with the cards so that I can pick up your energy. And let's see what this new moon is guiding us towards this throughout this May month. I said May. Yes, this May month. What I can see in the first instance is कि some of you are waiting for some news. Okay, some of you are waiting for some news where this news is going to change your life. And in this full moon, somewhere, whatever you are waiting for, that news is coming, and that news is going to give you a plan, a direction for your life, जो कि पहले वो कंप्लीट नहीं हो पाता था, बट अब वो कंप्लीट होगा. हाउ इट गोना हैपन इज कि हाउ डू यू नो कि दिस प्लान इज गोइंग टू वर्क. बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ अ टाइम स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए. मुझे ऐसा लग रहा है, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर मैरिज, if you're waiting for your soulmate, if you're waiting for a good relationship, the bell is ringing, the announcement is yet to happen, and the news is on the way. uh, that package is coming, that man is coming, that women is coming, that girl is coming, that victory is coming. So it is not about only the marriage, it is about the same news. if you're waiting for an offer letter, if you're waiting for a joining letter, या फिर आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, आप मार्क्स का वेट कर रहे हो कि कब मेरे मार्क्स आएंगे, मेरे मार्क्स कैसे मिलेंगे, या ये एग्ज़ाम जो मैंने दिया है ये कैसा हुआ होगा, या कैसा हुआ है, ये अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है. सो दिस इज़ द लेटर, दिस इज़ द मैसेज दैट यू आर वेटिंग फॉर. एंड the whole oracle cards that I have right now here is with me is कि they all are telling you कि the news is on the way and it is coming back to you and the announcement is yet to happen. And अगर आपको ऐसा लगता था कुछ दिन पहले या कुछ टाइम पहले that in your life you are lacking something in your life, it could be love, it could be money, it could be your goals, it could be that feeling of satisfaction. So this news, this arrival of somebody, this arrival of this letter, this package, this gift, it could be your it could be a relationship, it could be a person in your life that is going to arrive soon. बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाला है. इट इज़ नॉट अबाउट द वन पार्ट ऑफ योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज, इट इज़ द होल अमाउंट ऑफ लाइफ इट इज़ गोइंग टू चेंज. एंड अगर आप हर टाइम पे ये लगता था कि आप हार जा रहे हो, आपका जो भी आप काम कर रहे हो वो काम नहीं कर रहा है, या चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, जिस भी तरीके से आप चीज़ें सोचते हो वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो in this time period, after this full moon, after you are hearing this full reading, आपको समझ में आएगा कि something is going to shift in your energy. And how do you know that something is going to shift in your energy? Because I literally take some time out. I just sat and I was just looking at all these cards, and I was waiting कि what is exactly these cards are showing it to me.
एंड इट इज़ नॉट अबाउट what is written in this card, it is about the feeling that I could catch up with कि देर इज़ सम, एक होता है ना कुछ, कभी कभी कुछ रिलेशनशिप में गांठें पड़ जाती है और आप उसको खोल के ठीक करना चाहते हो, बट वो खुल के ठीक नहीं हो पा रही थी, आपको उस रिलेशनशिप को ठीक करना है, एंड दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हैपन बिकॉज earlier it was an unsuccessful plan with you, but now it is going to be successful plan for you. Same way, it is like कि everywhere wherever you have given that effort, जो काम आपने किया था, अब वो काम धीरे धीरे सॉल्व होने वाला है. एंड व्हाट एग्जैक्टली योर टैरो कार्ड इज शोइंग इट टू मी इज कि फॉर द ऑल कलेक्टिव्स, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सो मेनी ऑप्शंस, आप अगर ये फील कर रहे थे मेरे लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरे साथ तो सब कुछ जो भी होता है वो बुरा ही हो जाता है या गिर जाता है, जो भी मैं पकड़ती हूँ वो चीज़ें चली जाती है मेरे से, जिसको भी मैं चाहती हूँ वो नहीं मिलता, या जो जॉब मैं चाहती नहीं. If it is your self talk, if it is like you're talking within yourself, these kind of thoughts, then this card is guiding you to practice more gratitude, to practice and see कि the whole world is showing it to you कि बहुत सारी चीज़ें नहीं है बट कुछ तो है, वो कुछ को पकड़ के आप कुछ ना कुछ तो बना लोगे ना, because you have that capacity, but you are not looking into that capacity कि I can make something out of this thing. बट आप क्या कर रहे हो, आप उस टाइम पे बैठ जा रहे हो और आप सोचते बैठ रहे हो कि ये चीज़ तो नहीं हुआ, मेरे हिसाब से नहीं हुआ ना चीज़ें, तो अभी मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो ये चीज़ें आगे कैसे होंगी, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हुआ. इसका मतलब है कि यू हैव टू टर्न अराउंड एंड यू हैव टू सी, चेंज द परसेप्शन. थोड़ा सा हैंगमैन वाला क्वालिटी लेके आइए, थोड़ा सा परसेप्शन चेंज कीजिए और उस जगह पे सिट विथ योर सेल्फ एंड थिंक अबाउट कि इस तरीके से काम नहीं किया, क्या इस तरीके से काम करेगा, प्लान ए नहीं हुआ, प्लान बी होगा, क्या प्लान सी होगा. टिल द टाइम you are not giving up, this thing is going to happen to you, this thing is going to guide you, this thing is going to give you a good result. अभी जितना आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे उस टाइम पे आप जो भी चीज़ें वेट कर रहे हो, अभी आपके टाइम में आपने जितनी भी चीज़ें कर रखी है कुछ महीने से, जिस तरीके से सारे प्लानिटरी सिस्टम चल रहे थे, हमारे जितने भी सिचुएशंस अप डाउन हो रहे थे, now is a new beginning for you, now is a time where everything is changing for you. Here the page of wands is telling me कि जो भी आपका पैशन है, जब आप उस पैशन को फॉलो करोगे one step at a time, you are going to arrive sooner or later एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप वेल्दी भी रहोगे, आप हेल्दी भी रहोगे और आपके पास बहुत सारा इमोशनल फुलफिलमेंट होगा, एक तरीके की फीलिंग की वट एवर आई डिड एक्चुअली दिस थिंग्स वर्क्स फॉर मी, वट एवर आई हैव लाइक टच्ड वो गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ए फीलिंग. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको बहुत लॉयल फ्रेंड्स मिलेंगे, क्योंकि अर्लियर अगर आप ये कार्ड देखो तो बहुत सारी जगह पे आप ऑप्शंस के साथ खेल रहे थे, एंड बिकॉज यू आर प्लेइंग विथ ऑल दीज ऑप्शंस, यू आर प्लेइंग विथ सम, यू आर मीटिंग विथ सम अदर काइंड ऑफ स्नेक्स, जो कि आपके दोस्त तो थे, जो कि आपके वेल विशर्स जैसे दिख तो रहे थे, बट दे वर नॉट द वेल विशर फॉर यू. दे वर गोइंग टू गिव यू सो मेनी लेसन्स इन दिस टाइम कि आपको समझ में आ गया कि वट एवर आई वॉज सर्चिंग फॉर इट वॉज नॉट गोइंग टू हेल्प मी आउट, ये मेरे लिए काम नहीं किया, और इसकी वजह से जो भी चीज़ें मैंने ऑप्शंस की तरीके से ट्रीट किया, मैं भी लाइफ में एक ऑप्शंस बन गया. So I am going to make myself a priority, I'm going to work on myself, I'm going to change my own direction, and I'm going to give my passion a right space, a right प्लेस, जहाँ पे उसके बाद मैं जो भी चाह रहा हूँ या मैं जो भी चाह रही हूँ उसके बाद उन चीज़ों के साथ मैं अच्छे से ग्रो कर पाऊँ. एंड दिस इज़ गोइंग टू गिव मी अन इमोशनल फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट, जो भी मेरा है वो सारी चीज़ें जहाँ पे भी वेट कर रहा है वो सारी चीज़ें आ जाएगा. क्यों आ जाएगा? क्योंकि मैंने अपना काम करके रख दिया है, मैंने हर एक काम कर दिया. नाउ आई लर्न माई लेसन, नाउ आई हैव पुट द हेल्दी बाउंड्रीज, नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई जोन की मैंने सब सही से वन एट अ टाइम किया और मैंने इसको सबको संभाल के रख दिया. नाउ इज़ द टाइम कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये साइकिल, आई एम गोना मीट ऑल द गुड पीपल, आई एम गोना मीट द राइट काइंड ऑफ जॉब, आई एम गोना गेट द राइट काइंड ऑफ जॉब, आई एम गोना गेट द राइट काइंड ऑफ कार, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, जो भी चीज़ें आपके लाइफ से छूट रही थी आपको वो चीज़ें एक एक करके मिलने चालू हो जाएंगे. सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई एम गोना पुल सम एंजल कार्ड्स. तो आपके मन के अंदर अगर कोई क्वेश्चंस है सो आस्क दैट क्वेश्चंस फॉर योर सेल्फ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पुल आउट दैट कार्ड्स.
ओके, सो वट एवर यू आस्क्ड, द एंजल्स आर गाइडिंग यू कि क्योंकि आप कम्युनिकेट सही से नहीं कर रहे हो, आप शायद हो सकता है कि आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या जॉब के लिए जा रहे हो या किसी को आप अपने दिल की बात बता रहे हो या कोई भी चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे यू नीड टू कम्युनिकेट समथिंग, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली, यू हैव टू कम्युनिकेट इन अ राइट वे, यू हैव टू कम्युनिकेट क्लियरली। आप अगर एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप अगर ऑथेंटिक सेल्फ में रहोगे ना, आप जहाँ पे सच बोलते हो, सच बोलने के बाद ना आपको सोचना नहीं पड़ता कि बाद में मैंने कुछ बोल दिया तो फिर झूठ पकड़ी जाएगी। आप जब सच बोलोगे तो वही सच आपको बार बार अगर बोला तो भी वो सच हो जाएगा। तो इसी की वजह से आप इस तरीके से कम्युनिकेट कीजिए जो आपके मन के अंदर है, जो आपके दिल के अंदर है, जो आप सच में कम्युनिकेट करोगे, और जैसे आप इसको सही से कम्युनिकेट करोगे, जो भी आप चाह रहे हो वो तुरंत इन द वेरी नियर फ्यूचर वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट द एंजल्स गाइडेंस आर। सो होपफुली ये रीडिंग आपको अच्छा लगा हो, और आपको अगर ये अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विद दिस आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू ऑल, टेक केयर।